اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم آڈینس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میرے چینل اردو ناولز اینڈ پوئٹری پر خوش آمدید۔ سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو سلام۔ آج میں آپ سے امید کی نازک ڈوری کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کے آئی ہوں۔ امید کرتی ہوں پچھلی ایپیسوڈ آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی، اور میری آپ لوگوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہوتی ہے، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے لائک، کامنٹ، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ پچھلی ایپیسوڈ میں بات ہو رہی تھی، ناشتے کی ٹیبل لگی ہوئی تھی، آبی بھی ٹیبل پر آ چکی تھی، اور ایک ہی ٹاپک ہوتا ہے، ہنی مون کہاں پر جایا جائے۔ اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ آج اپنے ابا جان کو اس بات سے ڈائریکٹ تو منع نہیں کر سکتا کہ انہیں ہنی مون پر نہیں جانا، لیکن وہ یہ ضرور کہہ سکتا ہے کہ آپ کو چھوڑ کر ابھی میں کہیں نہیں جا سکتا۔ تو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اگلی ایپیسوڈ کا۔ بھائی صاحب، مجھے آپ سے شکایت ہے۔ پیچھے آبی کی سٹوری یہاں تک تھی، اس کے بعد آبی نے کنفیوز ہو کر وحاج کو دیکھا اور سوچا ڈرامے باز، دہشت گرد، کیونکہ اس دل ہی دل میں اسے وہ دہشت گرد لگتا تھا۔ آبی نے دل میں القابات سے نوازا۔ اس کے بعد، بھائی صاحب مجھے آپ سے شکایت ہے، میری زمل کے ہوتے ہوئے آپ نے آبی کا انتخاب کیوں کیا؟ آج حمیدہ بیگم کے دل سے زبان پر یہ بات آ ہی گئی۔ حمیدہ، میں نے پہلے زمن کا ہی نام لیا تھا اس کے سامنے، مگر اس نے کہا کہ وہ زمل کو اپنی چھوٹی بہن سمجھتا ہے اور ہرگز اس سے شادی نہیں کرے گا۔ اب تم خود بتاؤ، جس لڑکی کو وہ بہن سمجھتا ہے اس سے شادی کیسے کرتا؟ پھر میں نے بھی زیادہ زور نہیں دیا، زمل کے بعد مجھے آبی ہی نظر آئی، اور آبی بھی تمہاری بیٹی ہے، اسے ستیلی مت سمجھو، وہ بھی انسان ہے، ہماری محبتوں کی حقدار ہے۔ اس معصوم کا کیا قصور؟ شہریار انصاری نے کہا۔ ایسی بات نہیں بھائی صاحب، میں آبی کے لیے بہت خوش ہوں۔ حمیدہ نے کہا، تمہیں خوش ہونا بھی چاہیے، سگی اور ستیلی اولاد میں فرق بری عورتیں کرتی ہیں، میری بہن تو بہت اچھے دل کی مالک ہے، شہریار انصاری نے کہا۔ وہ آج آفس سے واپس آ کر پاگلوں کی طرح اپنے کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا۔ شام کا پہر تھا، چائے کے دیوانے کو چائے کی طلب بھی محسوس ہو رہی تھی۔ مجبور ہو کر وہ نیچے چائے پینے کے لیے آیا، جہاں پر آبش پہلے سے اپنے لیے چائے بنا رہی تھی۔ نور حسب معمول مغرب کی نماز ادا کرنے گئی ہوئی تھی۔ اسے کچن میں دیکھ کر وہ آج کنفیوز ہو گیا، مگر چائے تو پینی تھی۔ مجھے بھی چائے بنا دے ایک کپ، اس نے آرام سے آبی سے کہا۔ بنا رہی ہوں، آبی نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ وہ چائے کو دیکھ رہی تھی جو کہ ابلنے والی تھی۔ وہ آج لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ آبی نے چائے کا مگ اس کی طرف بڑھایا اور خود اپنے پرانے والے کمرے میں جانے لگی۔ بات سنیں، وہ آج نے پکارا تو اس نے مڑ کے دیکھا۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ میں نے آپ کو منع کیا تھا اس کمرے میں جانے سے، وحاج نے کہا۔ لاؤنج میں کوئی نہیں تھا، اس نے کہا۔ میں کیا کروں، جہاں مجھے سکون ملتا ہے میں وہاں ہی جاؤں گی نا۔ وہ اس کی بات کو خاطر میں لاتی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ بڑا آیا مجھ پر حکم چلانے والا، بیوی کا درجہ تو دینے کو تیار نہیں، اور حکم ایسے چلا رہا ہے جیسے مالک ہو۔ میں نے کوئی نہیں بات مانی اس کی، آبی نے کہا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کمرے کے بغیر رات اس نے کیسے گزاری، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ ایک کمرہ نہیں، اس کا مکمل گھر تھا۔ اس کی زندگی یہاں پر بسر ہو رہی تھی۔ پچھلے سالوں سے اوپر والا پورشن
تو اسے بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور وہاج اندر آیا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ اس کے سامنے کھڑا ہو کر بولا، دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھ کر۔ آبی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ نظریں جھکائے چائے پینے لگی۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ وہاج کو غصہ آنے لگا، مگر میں آپ سے بات کرنے کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں، آبی نے کہا۔ جب میں نے منع کیا ہے تو پھر؟ وہاج کی بات ابی نے آدھے میں کاٹی۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ اپنا کمرہ چھوڑ کر یہاں سو جائیں تو کیا آپ میری بات مانیں گے؟ آبی نے فٹ سے کہا۔ میں تمہارا شوہر ہوں اور میرا حکم ماننا تم پر واجب ہے۔ وہ پھر غصے میں آپ سے تم پر آ گیا۔ شوہر نہیں، ایمرجنسی والے شوہر، زبردستی سر پر مسلط کیے جانے والے شوہر، جوتوں سمیت میری زندگی میں گھسنے والے شوہر۔ ماموں کی صحت کا خیال نہیں ہوتا نا تو میں ایک منٹ میں اس گھر میں نہیں رہتی۔ مجبوری میں ہی رہ رہی ہوں کیونکہ ان کا دل نہیں توڑ سکتی، آبی نے کہا۔ تمہاری مجبوری ڈیڈ نہیں ہے، تمہاری مجبوری یہ گھر ہے، یہ دولت ہے، یہ آسائشیں ہیں، یہ لوازمات ہیں جنہیں تم صبح و شام کھاتی ہو اور میری کروڑوں کی جائیداد کی مالکن بننے کے خواب دیکھ رہی ہو۔ بیٹھے بٹھائے 1 کروڑ پتی شوہر مل گیا تمہیں، ایک شاندار محل نما گھر مل گیا۔ تم نے سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا اتنا ہینڈسم بزنس مین تمہارا شوہر بنے گا، وہاج نے کہا۔ تو آبی اٹھ کھڑی ہوئی، اسے سرتاپا غور سے دیکھا۔ ہینڈسم بزنس مین، آبی کچھ سوچ رہی تھی۔ اور آپ نے بھی نہیں سوچا کہ اتنی حسین پر کم عمر لڑکی مل جائے گی۔ اس کے مقابلے میں آبی اور کچھ تو نہیں، اپنے حسن کو ہی آگے لے آئی۔ حسن کے علاوہ تو کچھ تھا ہی نہیں اس بیچاری کے پاس۔ آبی نے کہا تو وہاج کا قہقہا بلند ہوا۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ تم سے زیادہ حسین اور کم عمر لڑکیوں کی لائن لگی ہوئی تھی میرے لیے، پاکستان میں بھی اور امریکہ میں بھی۔ ایک شکل کے سوا ہے ہی کیا تم میں؟ نہ تمہارا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ ہے، نہ تمہاری کوئی پرسنالٹی ہے، نہ تمہارے پاس کوئی اچھی ایجوکیشن ہے۔ بات تو ڈھنگ سے کرنی نہیں آتی تمہیں۔ میں سامنے آتا ہوں تو تمہارے ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں۔ کانفیڈنس سے ذرا برابر بھی نہیں ہے تمہارے اندر۔ تم کس بیس پر اپنا مقابلہ مجھ سے کر رہی ہو؟ وہاج نے آئینہ دکھایا۔ مطلب اس نے نوٹ کیا کہ میرے ہاتھ پاؤں اس کے سامنے کانپتے تھے، پر شکر ہے اب نہیں کانپتے، آبی نے دل میں سوچا۔ اس کی باقی باتوں کا دکھ ہوا تھا اسے۔ جہاں تک بات ہے فیملی بیک گراؤنڈز کی تو میرا بھی وہی فیملی بیک گراؤنڈ ہے جو زمل اور نور کا ہے۔ میں بھی انہی کے باپ کی بیٹی ہوں۔ جہاں تک بات ہے تعلیم کی تو وہ تو میں حاصل کر ہی رہی ہوں۔ آپ بیچ میں ٹپک پڑے۔ مہنگی ہے یا سستی، لیکن تعلیم تو تھی نا۔ مہنگی تعلیم حاصل کر کے آپ نے کون سا تمیز و تہذیب سیکھ لی؟ میرے سامنے کھڑے وہی جہلوں والی باتیں کر رہے ہیں، اور پیسہ آپ نے نہیں آپ کے باپ نے کمایا ہے، وہ بھی 30 سال کی محنت کے بعد۔ ان 30 سالوں میں شہریار ماموں نے تو کبھی غرور نہیں کیا اپنی دولت پر جتنا آپ 30 دن ان کی سیٹ پر بیٹھ کر رہے ہیں۔ آبی نے حساب برابر کر دیا۔ آبی کو خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہاج کے سامنے اتنا زیادہ بول رہی ہے۔ کل تک تو اس کی چوں نہیں نکلتی وہاج کے سامنے، آج چاں چوں سب نکل رہا تھا منہ سے۔ پتہ نہیں کہاں سے اتنی ہمت آ گئی تھی اسے۔ وہاج کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا آبی کی باتیں سن کر۔ میرے گھر میں کھڑے ہو کر 6 سال میرے ٹکڑوں پر پلنے والی لڑکی، میرے پیسے سے اوڑھنے پہننے کھانے اور پڑھنے والی لڑکی آج میرے ہی مقابل آ کر کھڑی ہو گئی۔ واو، گریٹ۔ یہ جو کینچی کی طرح زبان چل رہی ہے نا تو 2 منٹ میں کھینچ سکتا ہوں۔ آج کے بعد اگر میرے سامنے اونچی آواز میں بات بھی کی تو ہاتھ پکڑ کر باہر روڈ پر کھڑا کر دوں گا، تب تمہیں تمہاری ساری اوقات صحیح معنوں میں سمجھ آئے گی۔ اس لیے آج پہلی اور آخری وارننگ دے رہا ہوں، اپنی اوقات میں رہو، اور ہاں آج رات اپنے کمرے کا لاک کھلا رکھنا، وہاج نے کہا۔ باقی ساری باتیں ایک طرف رکھ کر آبی کا دھیان اس کے آخری جملے پر گیا۔ لاک کھول دوں کمرے کا، کیا رادے ہیں اس چھچھندر کے؟ آبی کا منہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہاج کہتا ہوا باہر نکل آ۔ آبی سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ خبیث انسان نے، اگر مجھے ہاتھ بھی لگتا تو منہ توڑ دوں گی اس کا، غلیظ گھٹیا انسان۔ ایک طرف وہ تو اتنی نفرت جتا رہا ہے اور اوپر سے کہہ رہا ہے دروازہ کھول دینا، کمینہ۔ آبی دیر تک اسے گالیاں دیتی رہی۔ سونے کا وقت ہوا تو آبی کو وہاج کی لاک کھولنے والی بات یاد آئی۔ اس کے دروازے کی طرف دیکھا، پھر اٹھ کر جلدی سے دروازہ لاک کیا۔ اوپر کنڈی تھی، وہ بھی صحیح سے لگا دی، کیا پتہ چابیاں ہوں اس کے پاس۔
आबी ने ये सोचकर कुंडी भी लगा दी। वहाज ने देखा रात के 12 बज चुके हैं। वो उठा और आबी के कमरे तक आया। देखा तो लाक लगी हुई है। उसे गुस्सा आया। अभी दरवाज़ा खोलो, वहाज ने कहा। कोई जवाब नहीं आया। वहाज दस्तक आहिस्ता से दे रहा था ताकि नीचे भी कोई सुन न ले। अंदर आबी का गुस्से से बुरा हाल था। कमीना, जलील इंसान, मतलबी। आबी गुस्से से बेड पर तकिया गोद में रखे बोल रही थी। आबी, मैं कह रहा हूँ दरवाज़ा खोलो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस बार मज़ीद सख्ती से कहा, लेकिन दबी दबी आवाज़ में। मैं मरते मर जाऊंगी लेकिन दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। आबी बड़बड़ा रही थी। अभी खोलो वरना मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा, वहाज ने धमकी दी। लेकिन आबी डस से मस न हुई। थक हार कर वहाज अपने कमरे में वापस आ गया। डैड को पता चाहिए और बहू को एक जोरदार थप्पड़ की ज़रूरत है, वहाज ने गुस्से से कहा और आंखें बंद की। वहाज अपने ऑफिस में अपने दोस्त अहमद के साथ बैठा हुआ था। अहमद उसका बेहतरीन दोस्त है। वो इसे हर बात शेयर करता था। अभी वाला मामला भी उसने अहमद से शेयर किया। ये औरत साथ बहुत बेवकूफ़ होती है। दिखाती ऐसे कि ये कि पत्थर है, लेकिन ज़रा सी तारीफ पर पिघल जाती है। अहमद ने अपनी बात शुरू की। वहाज गौर से सुनने लगा। इस तरह तो भाभी कभी नहीं मानेंगी। तुझे थोड़ा नरम रवैया इख्तियार करना होगा। जो बीवियाँ होती हैं ना, ये तारीफ की भूखी होती है। जितनी तल्ख बातें तूने उनको सुनाई है, उसके बाद उनसे कैसे उम्मीद रख सकता है किसी भी कुर्बत की। अहमद ने कहा, इसके अंदर कुछ तारीफ के काबिल हो तो तारीफ करो ना। वो बेवकूफ़ सी लड़की है। मुझे मैच्योर औरतें पसंद हैं, अपनी उम्र से बड़ी इसलिए क्योंकि वो ज़्यादा मैच्योर होती हैं। ये मेरी फितरत है। मुझे इन्हीं औरतों में कशिश महसूस होती है जो समझदार हो। इसलिए मुझे नाजिश पसंद आ गई थी। वो बहुत डीप बातें करती थी, डीप सोचती थी। उसकी अपनी एक सोच थी। जब वो बोलती थी वो तो मुझे सुनना अच्छा लगता था। उसके पास गहरी बातों का खजाना था। उसकी हर बात पर मैं हैरान हो जाता था। उसकी सोच पर हैरान होता। लेकिन अभी क्या है अभी में, वहाज ने कहा। क्या वो खूबसूरत नहीं, अहमद ने पूछा। बिलाल अहमद शादी में देख चुका था अबिश को। खूबसूरत तो है, बहुत है वो। मगर वहाज ने कुछ कहना चाहा। मगर को छोड़ो, मैं सीधी सीधी बात बताता हूँ। दो चारों तरफ से बुरे तरीके से फंस चुका है। अंकल तुझे दूसरी शादी करने नहीं देंगे। भाभी को भी घर से निकाल लेंगे नहीं। पोता उनको और हाल में चाहिए, वो भी जल्दी। शादी की पहली सुबह ही उनकी फरमाइश पोते की थी। इस बात से तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि उनको किस कदर ख्वाहिश है। तुम्हारी मोम भी इस अरमान को दिल में लिए दुनिया से रुखसत हो गई। जब तुम बिल्कुल भी नहीं जाओगे तो कि तुम्हारी डैड भी। अहमद की बात वहाज ने आधे में काटी। अल्लाह ना करे ऐसा हो। मैं डैड के बारे में ऐसी बात नहीं सुन सकता। आई लव माई डैड मोर देन एनी अदर थिंग इन दिस वर्ल्ड, वहाज ने कहा। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। तुम चारों तरफ से फंसे हुए हो। तुम्हें भाभी का दिल नरम करने की ज़रूरत है, और औरत का दिल तारीफ से नरम होता है। और तो मर्द है। इतनी हसीन लड़की तुम्हारी बीवी है, इसके बावजूद तुम इस तरह क्यों कर रहे हो? तुम्हें कुछ खुद से समझदार होना चाहिए। कुछ तो अक्ल से काम लो। इस तरह की बातें उसका दोस्त उसे समझा रहा था, लेकिन उसका दिल भी तो चाहता था कि वो अपने बाप की ख्वाहिश को पूरा करे। तुम उसके साथ एक जायज़ रिश्ते में बंधे हुए हो। मैं हैरान हूँ तुम पर, तुम्हारी सोच पर, अहमद ने समझाया। अगर बच्चा चाहिए तो ना चाहते हुए भी बीवी का दिल जीतना होगा, अहमद ने फिर कहा। दिल जीतना ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती भी की जा सकती है। मैं उसका हक रखता हूँ, क्योंकि वहाज इंसानी एक फजूल लड़की का दिल जीतने में इतनी मेहनत करके अपना टाइम ज़ाया नहीं कर सकता। वहाज ने कहकर सिगरेट सुलगाई। अभी ये तुमने क्या हुलिया बना रखा है अपनी शक्ल देखो, कोई मेकअप नहीं। अपने कपड़े देखो, क्या ऐसी होती है नई नवेली दुल्हन? वह आज देखेगा तो क्या सोचेगा? तैयार हो हर वक्त, नूर ने डांटा। अभी इसकी गोद में सर रखे हुए थी। अभी मुझे ये सब नहीं पसंद, मुझे सादगी अच्छी लगती है, अभी ने कहा। बेवकूफ़ लड़की, शोहर को लभाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता रहता है। अच्छे कपड़े पहनने पड़ते हैं, मेकअप, ज्वेलरी, सजी सवरी बीवी शोहर को अच्छी लगती है, नूर ने समझाया। लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लगता अभी। आपी ने बेसारी से कहा। क्या बात है हुई, अपने शोहर के बारे में कोई लड़की ऐसा कहती है भला? और क्या बुराई है वहाज में?
हर लड़की का आइडियल है वो, कितना हैंडसम है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि इतना शानदार शौहर मिला है। नूर ने कहा, इसकी बातें वो मेरा दिल दुखाता है, खुद को पता नहीं क्या समझता है और मुझे बहुत हकीर समझता है। ये बात ज़ाहरी खूबसूरती की नहीं है, इंसान का दिल भी अच्छा होना चाहिए, उसका दिल बहुत बुरा है, इंतहाई मगरूर इंसान है वो, ऊपर से खड़ूस भी। आबी ने कहा, ये क्या इसके लिए कर रही हो, आप जनाब कहकर बुलाओ उसे। नूर ने कहा, उससे नहीं दी जाती इतनी इज्जत, इंसान अपनी इज्जत खुद करवाता है, जो इज्जत देगा वो बदले में इज्जत लेगा। आबी ने कहा, बुरी बात, तुम्हें अंदाजा भी है कि इस्लाम में शोहर का क्या मकाम है। शोहर एक मुसलमान औरत के जन्नत का दरवाज़ा है और तुम अपने शोहर के बारे में ऐसी बातें करके इतनी गुनहगार हो रही हो। नूर ने कहा, तो आबी भी शोहर को भी चाहिए कि बीवी को इज्जत दे। आबी ने नूर की गोद से सर उठाकर कहा, तुम्हें अपना फ़र्ज़ इंजाम देना है, कि क्योंकि तुम अपने किए की जवाबदेह होगी खुदा के सामने, ना कि इसके किए की। नूर काफ़ी देर तक उसे समझाती रही, लेकिन सब कुछ आबिश के सर के ऊपर से गुजर गया। सोने का वक़्त हुआ तो आबी अपने कमरे में आई और दरवाज़ा लॉक किया, लेकिन इसने नहीं देखा कि वह आज पहले से वॉशरूम में मौजूद था। वो जानबूझकर वहाँ गया था ताकि आबी को देख सके। आबी बेड पर दराज हो गई और लेट कर छत को घूर रही थी कि अचानक वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और वह आज बाहर आया। उसे देखकर आबी की तो जैसे जान ही निकल गई। आप यहाँ? आबी करंट खाकर उठी, अपना दुपट्टा लिया जो कि उसने फेंक दिया था आते ही। ये मेरा घर है और मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ, मुझे कहीं भी जाने के लिए तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। वह आज कहता हुआ आहिस्ता आहिस्ता से चलता हुआ बेड के करीब आने लगा। आबी घबरा गई। आप अपने कमरे में जाएं। आबी उठ खड़ी हुई। मैंने कहा ना, ये सारा घर मेरा है और मैं जहाँ चाहे जा सकता हूँ। वह आज ने कहते उसका दुपट्टा उतार फेंका। ये क्या बदतमीज़ी है। आबी को गुस्सा आ गया। बदतमीज़ी नहीं, मेरा हक है। वह आज ने कहकर उसका हाथ खींचकर उसे खुद से लगाया। अभी भागने लगी तो वह हाथ ने उसका बाजू पकड़ा और पीछे से उसे काबू किया। अम्मी, अपी। अपी ने जोर की चीख मारनी चाहिए, लेकिन वह आज ने उसके मुंह पर अपना हाथ जोर से रख दिया। ये क्या तरीका है, किसी ने सुन लिया तो क्या सोचेगा। कोई अकल है या नहीं। अगर डैड ने या पुप्पो, नूर, रेयान, जमल किसी ने भी तुम्हारी चीखें सुनी तो कितनी बेस्मेंट होगी, मुझे तुम्हें अंदाजा है। वह हाज ने इसके मुंह पर सख्ती से हाथ जमाया हुआ था। उसके कान के करीब गुस्से से दबी दबी आवाज में बोल रहा था। गुस्सा तो उसे बहुत आया आबी की इस हरकत पर, लेकिन ऊंचा बोलकर वो अपना तमाशा नहीं बनाना चाहता था घर वालों के सामने। आपकी मुसलसल अपने दोनों हाथों से वह हाज के हाथ को हटा रही थी अपने मुंह के सामने से, लेकिन वह हाज का हाथ इस कदर सख्त था कि उसकी सारी कोशिश बेकार थी। आवाज नहीं आनी चाहिए अब तुम्हारी। वह हाज ने अपना हाथ उसके मुंह से हटाया। घटिया गलीज इंसान, बदतमीज बेशरम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की। एक तरफ तो मेरी इतनी बुराई करते हो, मुझे इतना घटिया बातें सुनाते हो, मुझे डिग्रेड करते हो, मेरा बैकग्राउंड खंगालते हो, मेरी शख्सियत का मजाक उड़ाते हो, मेरी तालीम पर हंसते हो। रात को तुम्हें तुम्हारा हक याद आ जाता है। तुम मेरी सोचों से भी ज्यादा गिरी हुई इंसान हो, जिसके लिए औरत सिर्फ गोश्त पोस्ट के सिवा कुछ नहीं। हक सारे याद है अपने, लेकिन अपना फर्ज याद नहीं। इज्जत दी नहीं जाती बीवी को और हक लेने के लिए सबसे आगे हो। आबी का गुस्सा आसमान को छू रहा था। वह आज एक पल को सख्त हो गया उसकी बातें सुनकर। वहां से घटिया कह रही थी कि बदतमीज बेशरम कह रही थी। वो कह रही थी कि वो इसकी सोचों से भी गिरा हुआ इंसान है। अपने मुतल्लिक इस किस्म की बातें पहली बार वह आज सारी किसी लड़की से मुंह से सुन रहा था, वो भी ऐसी लड़की के मुंह से जिसे वो कुछ समझता ही नहीं था। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें हाथ लगाने का। वो तो डैड, वह आज कहते कहते खामोश हो गया। अभी निकल जाओ मेरे कमरे से, वरना मैं चीख चीख कर सारे घर वालों को इकट्ठा कर लूंगी। अभी ने कहा। वह आज अब उसे सुर्ख चेहरे और सुर्ख आंखों से देख रहा था। काफी देर तक उसे यूं ही देखता रहा। फिर उसे अहमद की बातें याद आई। औरत ज़ात की तारीफ करो, क्योंकि औरत ज़ात हमेशा तारीफ की मौकी होती है। अभी भी बिल्कुल इसी अंदाज में उसकी आंखों में आंखें डालकर देखे जा रही थी, गुस्से से। पहले तो वह आज उसे गुस्से से देख रहा था, फिर लाशौरी तौर पर उसका ध्यान उसकी चेहरे की नकोश में चला गया। मोटी मोटी आंखों पर मुड़ी हुई घनी पलकें, मोटे मगर खूबसूरत होंठ, थोड़ी पर तिल, हर किस्म के मेकअप से आरी चेहरा एक फूल की तरह शादाब है। चेहरा उसका है या कोई महताब है। चेहरा जैसे गजल, चेहरा जाने गजल, चेहरा जैसे कली, चेहरा जैसे कमल, चेहरा जैसे तस्वीर भी, चेहरा एक ख्वाब भी, चेहरा ताबीर भी,
चेहरा कोई अलफ लैलवी दस्ता, चेहरा एक पल यकीन, चेहरा एक पल गुमा, चेहरा जैसा कि चेहरा कहीं भी नहीं। माहो रमा महजबी महजबी। जिंदगी में पहली बार अपने पसंदीदा गाने के बोल उसे याद आने लगे। अभी भी अपनी मोटी मोटी आंखें उस पर जमा उसे घूर रही थी। वहाज ने उसकी आंखों में देखा, आंखें देखी तो मैं देखता रह गया। जाम तू और दोनों ही दो आतशा, आंखें या महक दे के ये दो बाब है। आंखें उनको कहूँ या कहूँ ख्वाब है। आंखें नीची हुई तो हया बन गई, आंखें ऊंची हुई तो धुआं बन गई। आंखें उठकर झुकी तो आधा बन गई, आंखें झुककर उठी तो कज़ा बन गई। आंखें जिन पे छुपे आसमानों ज़मीं, नरगसी नरगसी सुरमगी सुरमगी। वहाज के दिल को कुछ हुआ, लेकिन अगले ही पल आबी की बात नहीं उसका जी जला दिया। अपनी गलीज नज़रें मेरे चेहरे से हटाओ और जाओ यहाँ से, आबी ने कहा। वहाज इंसारी जो एक अजीब सी कैफियत में जाने लगा था, इस लम्हे के शहर में खोने ही लगा था। अभी की कड़वी बात ने उसे इस हसीन लम्हे से लुत्फ अंदाज होने ही नहीं दिया था। वहाज इंसारी अपने हवासों में वापस आ चुका था। जहन्नम में जाओ, वहाज कहता हुआ वहां से निकल गया और जोर से दरवाजा बंद किया। ठाक की आवाज ने सुकून को तोड़ा। वहाज अपने कमरे में आ गया और बेड पर लेट गया। अपना दायां बाजू अपने हाथ पर रख लिया और सोने की कोशिश करने लगा। नींद कहाँ आनी थी, उसका तो गुस्से से बुरा हाल था। उठ बैठा, दोनों हाथों की मुट्ठी बनाए अपनी कोहनियां घुटनों पर रखकर बैठ गया। गुस्से से उसका दिमाग खोल रहा था। फिर उसकी आंखों के सामने आबी का चेहरा आ गया। जब से वो यहाँ आया था, आज पहली बार उसे गौर से देखा था, इतने करीब से। उसे अंदाजा ही नहीं था कि आबी के नए नक्श इतने हसीन थे। वो हमेशा एक नज़र उस पर डालकर नगाहें फेर लेता था, मगर आज जो इतनी देर तक उस पर नजरें गाड़े खड़ा था, गुस्से के साथ साथ कोई और भी कैफियत उसे आ रही थी जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। वहाज इंसारी जिसकी एक नज़र की मुंतज़िर लड़कियां रहती थी, जिसके आगे पीछे फिरती थी, जिसकी तवज्जो हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाती थी, बेबाकी वाले लिबास पहनकर उनके सामने आ जाती थी ताकि वहाज इंसारी उनके हुस्न से मुतासिर हो। उस वहाज इंसारी को एक आम सी लड़की ने बहुत बुरे तरीके से धुतकार दिया। जिस नज़र की लड़कियां मुंतज़िर होती थी, उन नज़रों को गलीज़ नज़रें कहकर उसे कमरे से निकाल दिया। वहाज अब गुस्से से लंबी लंबी सांसें ले रहा था। न जाने कितनी देर तक वो यूं ही बैठा रहा। फिर नींद की देवी उस पर मेहरबान हो गई। सुबह नाश्ते की मेज पर वहाज किसी गहरी सोच में खोया हुआ आमलेट छुरी काटने से कुचल रहा था। वो जिस्मानी तौर पर यहाँ था, लेकिन ज़हनी तौर पर शायद यहाँ नहीं था। किन सोचों में गुम हो वहाज बेटा, हामिदा ने पूछा तो वो चुप पड़ा और हड़बड़ा गया जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। उसने हमीदा, शहरियार, इंसारी और वहाँ पर मौजूद बाकी सब की तरफ देखा। फिर बोला, कुछ नहीं गुप्पो, बस ऐसे ही। वो कहकर आमलेट खाने लगा। आज बहुत चुप चुप लग रहे हो, कोई बात है क्या? शहरियार इंसारी ने पूछा। नो डैड, कोई बात नहीं, वहाज ने नजरें चलाते हुए कहा और चाय का दूसरा कप भरा। सुबह को 3 कप वो चाय पीता ही था। अभी देर से जागती थी। वो नाश्ते की मेज पर शाज़ो नादर ही नजर आती थी। बाकी सब घर वालों की सुबह खैजी की आदत थी। 7 बजे तक सब जागते थे और नाश्ते की मेज पर मौजूद होते थे और मिलजुल कर खाना खाते थे। शहरियार इंसारी को मिलजुल कर रहना पसंद था। ये इन्हीं के बनाए हुए असूल थे कि नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना सब इकट्ठे खाते थे। दोपहर को तो वहाज ऑफिस में होता था, बाकी नाश्ता और रात का खाना वो घर पर ही करता था। अभी सीढ़ियाँ उतरती हुई दिखाई दी। वो आज की नज़रों ने बेख्तियार उसका ताक़ुब किया था। उसके हाथ में चाय का कप था। वो सिप लेने लगा था, लेकिन अभी को देखकर खोसा गया। उसे रात वाला सारा मंजर और सारी बातें याद आ गई। अभी आराम से चलती हुई आकर बैठ गई। आज सूरज कहाँ से तलू हुआ है मेरी बहन, आज सवेरे जागी है। अल्लाह करे आज का दिन खैरियत से गुजर जाए, रियान ने शरारत से कहा। अभी ने गुस्से से रियान को देखा, मगर कहा कुछ नहीं। रियान, मेरी बहू को तंग मत करो, शहरियार इंसारी ने कहा। छोड़े मामू, इसकी यही बातें मुझे अच्छी लगती है। आखिरी एवल डेवल भाई जो ही मेरा लिया, अभी ने प्यार से कहा। वो रियान को एवल डेवल कहती थी। मैं चलता हूँ। वहाज एकदम खड़ा हुआ।
अरे नाश्ता तो कर लो सही तरीके से, अभी तक चाय के 2 कप ही पिए हैं तुमने, तीसरा रहता है। नूर ने याद दिलाया। उसकी आदतों से सब घर वाले वाकिफ थे। बस नूर पेट भर गया लोगों की बातों से ही। वह आज ने आबी की तरफ देखते हुए कहा। आबी ने एक नज़र उसे देखा, वो उससे से नजरें फेर कर वहाँ से चलता बना। आबी ने अपना निचला होंठ दांतों से निकल काटा। ऐसे क्या हुआ? नूर ने आबी के कान में सरगोशी की। मुझे क्या पता। आबी नाश्ते में मसरूफ हो गई, पर आबी को रहकर वहाँ आज की रात वाली हरकत याद आ रही थी और उसे चिड़चिड़ी आ रही थी। आबी चाय का मग भरकर वही लॉन में आकर पीने लगी। उसे सुबह के वक्त लॉन में बहुत अच्छा एहसास होता था, वरना तो उसकी सुबह देर ही हो जाती थी। वो लॉन में पड़े चेयर पर बैठ गई। वह आज इंसानी, इतना तो मैं जानती हूँ, तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। अब तुम्हें अपना हक याद आ रहा है। अब तुम्हें मेरी गुर्बत चाहिए। ज़रूर इसके पीछे भी तुम्हारा कोई मफाद छुपा हुआ है। ये तो मैं जान कर रहूँगी तुम्हारे क्या इरादे हैं। वो दिल ही दिल में अहद करती जा रही थी। फिर वो चाय का मग किचन में रखकर वहाँ लाउंज में ही बैठ गई। मैगजीन खंगालने लगी। उसके फ़ोन पर एक नंबर से कॉल आ रहा था। उसे नंबर पहचानने की कोशिश पर नाकाम रही। कॉल मुसलसल बज रहा था। आबी ने फ़ोन कान से लगाया। आगे से परेशानी से भरे हुए आवाज़ में कहा गया, हेलो आबिश भाभी, मैं अहमद बात कर रहा हूँ, वो आज का दोस्त। अहमद ने आराम से कहा ताकि सामने वाले को परेशानी न हो। जी बोले, और आपके पास मेरा नंबर कैसे आया? आबिश को तजस्सुस हुआ, क्योंकि उसे लगा कि वहाज के पास उसका नंबर सेव नहीं होगा, लेकिन वहाज ने जिमल से उसका नंबर ले लिया था। शहरियार इंसारी की तबीयत की वजह से कभी भी कोई भी इमरजेंसी हो सकती थी। इस बात को छोड़े, मैं जो बात बता रहा हूँ ज़रा तहम्मुल से सुने। अंकल को मैंने उसके इसलिए फ़ोन नहीं किया कि वो बीमार है, परेशान हो जाएंगे। अहमद ने आराम से कहा। जी बोले, ऐसी क्या बात है? आबिश को मज़ीद परेशानी ने गैर लिया। एक सेकंड में उसे हज़ारों वसवसे आने लगे। दरअसल वहाज का एक्सीडेंट हो गया है, अहमद ने कहा। क्या? आबी खड़ी हो गई। उसके गोद से मैगजीन नीचे गिर गया। उसके पाँव न जाने क्यों कांपने लगे। पहले नाजिश, फिर जोबिया, फिर शहरियार इंसानी की सेहत खराबी, और अब वहाज का एक्सीडेंट। परेशानी की कोई बात नहीं, अब वो ठीक है, पर उसके एक पैर और हाथ में फ्रैक्चर आया है। आप आराम से अंकल को बताएं। हॉस्पिटल का एड्रेस मैं आपको सेंड करता हूँ। अहमद अपनी बात मुकम्मल करके फ़ोन बंद कर दिया। अहमद की आगे की बात सुनकर अभी की जान में जान आई, वरना उस एक मिनट में क्या कुछ नहीं सोच लिया था उसने। उफ! अभी दोनों हाथों से सर पकड़ कर बैठ गई। अब अगर इस फितने को कुछ हो गया तो उसका इल्ज़ाम भी मेरे सर डाल देगा। पहले तो कत्ल के इल्ज़ाम मुझ पर आयद रखे हैं, अब उसकी तजरीज़ की जिम्मेदारी भी मुझ पर ठहराई जाएगी। अब तो मुझे लग रहा है मैं वाकई ही मनहूस हूँ। उसका बड़ा न जारी था कि हमीदा किचन से बाहर आई। क्या हुआ अभी, ऐसे क्यों बैठी हुई? जो तबीयत तो ठीक है, हमीदा ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा। तबीयत तो ठीक है, किस्मत ख़राब है, आबी ने कहा। तो नाशुक्री लड़की, अब क्या हुआ है? हमीदा को इसकी बात पर गुस्सा आ गया। वह आज का एक्सीडेंट हुआ है, पर वो ठीक है, फ्रैक्चर हुआ है पैर में। आबी के बात पर हमीदा का मुंह खुला रह गया। या अल्लाह ताला खैर। वो सोफे पर ढह गई। खैर ही है, अब मामू को आराम से बताना, उनकी तबीयत से पहले ही ख़राब है। आप काबू करें खुद पर। फिर नूर, रेहान, सब ने हमीदा को समझाया। तुम अस्पताल चलोगी ना अभी? हमीदा और रेहान अस्पताल के लिए तैयार हुए तो रेहान ने आबी से पूछा, नहीं, मुझे क्या ज़रूरत है जाने की, आप लोग जा रहे हैं ना? आबी ने लापरवाही से कहा। बज़ाहिर तो वो लापरवाह लग रही थी, लेकिन पता नहीं उसे इस खबर पर कुछ और ही फीलिंग आ रही थी, जैसे वो समझने से कासिर थी। ये क्या बात हुई? अगर तुम बीवी हो उसकी, तुम्हें तो सबसे पहले जाना चाहिए। हमीदा को गुस्सा आ गया आबी की बात सुनकर। मैं क्या करूँगी वहाँ जाकर? मुझे देखकर बीमार बंदा मज़ीद बीमार हो जाएगा। मरीज़ की सेहत के लिए यही बेहतर है कि मैं न जाऊँ, आबी ने कहा। सब खुदा का, कब तुम्हें अक्ल आएगी? कितना समझाती हूँ, लेकिन तुम्हारी अक्ल में कोई बात नहीं जाती। तुम क्यों नहीं समझती कि अब वहाँ तुम्हारी जिम्मेदारी है? शादी की है, कोई मजाक नहीं, ज़िंदगी भर का साथ है। क्या निकाह को खेल तमाशा समझ रखा है तुम दोनों ने? हमीदा ने कहा। मैं बस इतना कह रही हूँ कि उसे मेरा जाना अच्छा नहीं लगेगा। आबी ने अपना मुद्दा बयान किया। अगर तुम नहीं जाओगी तो भाई साहब नाराज़ होंगे। कितनी खुशी से उन्होंने अपने बेटे की शादी तुमसे की है ताकि तुम उसका ख्याल रखो, मगर तुमने तो कोई परवाह ही नहीं। क्या ऐसी होती है बीवियाँ? अब जल्दी उठो, मेरा पारा मजीद हाई मत करो, हमीदा ने कहा। हमीदा ने आखिरी वार्निंग दी तो उठ खड़ी हुई। रेहान के साथ आबी और हमीदा अस्पताल गए। नूर जिमल को घर पर रहने का ही कहा। हॉस्पिटल में कदम रखते हुए उसके पैर कपा रहे थे। उसे अजीब घबराहट होती थी अस्पताल से, मरीजों से, वहाँ के माहौल से। इसलिए जब भी बीमार हो जाती थी कभी अस्पताल नहीं जाती थी, घर पर ही दवाइयाँ खाकर गुजारा करती थी। थोड़ा आगे चले। रेहान ने अहमद को देखकर उसकी तरफ तेज कदम बढ़ाए। अहमद ने सबके परेशान चेहरे देखकर
तसल्ली दी, डरने की कोई बात नहीं, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, अब वो होश में है, आओ अंदर जा सकते हैं। अहमद ने रूम की तरफ इशारा किया। हमीदा रेहान उस तरफ बढ़ गए। आबी को लग रहा था वो पुलसरात पर चल रही हो, पर जाना तो था ही। अंदर दाखिल हुई तो वह हाज का बायां पाँव प्लास्टर से जकड़ा हुआ था, हाथ में पट्टी बंधी थी, सर पर हल्का सा जख्म का निशान था, ड्रिप चल रहा था। पुप्पो उसकी हालत देखकर रो रही थी। वहाज अपनी नकाहा ज़दा आवाज़ में उनको तसल्ली दे रहा था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ पुप्पो, अब परेशान मत हो, डैड को तो नहीं बताया। वहाज को इस हाल में अपने वालिद की फिक्र थी। उसके पास था ही क्या भला अपने वालिद के सिवा? वो इसकी कुल कायनात थे, उसके जीने का सरमाया थे, उसके मताए जान थे। नहीं बेटा, अब्बी ने बताने से मना कर दिया। उसने कहा कि तुम्हें घर ले जाकर उनको आराम से बताएंगे। अगर अस्पताल का सुन लिया तो वो परेशान होंगे, उनका बीपी ने बढ़ जाएगा। तुम्हें अपनी नज़रों के सामने अपने घर में देखेंगे तो उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। हमीदा बेगम ने कहा तो वहाज की नज़र आबी की तरफ उठी। इतनी अक्लमंदी वाली बात की तवक्को नहीं थी उसे अपनी बीवी पर। उसकी तवक्को तो वो हमीदा से कर रहा था। क्या उसे वाकई डैड की फिक्र है? वहाज सोच में पड़ गया। अभी रेहान के पीछे खड़े अपने हाथ की उंगलियां मरोड़ रही थी। फिर वो खनूदगी में चला गया। ड्रिप की में नशा था ताकि आराम करे। हमीदा और रेहान वहाज के पास रुके। अभी घर वापस आ गई शहरयार इंसारी के पास। शहरयार इंसारी ने वहाज को ना पाकर उसके मुतालिक पूछा। मामू, उन्हें एक ज़रूरी मीटिंग के लिए इस्लामाबाद जाना पड़ा, 2 दिन में वापस आ जाएंगे। आबी ने झूठ बोला। 3 दिन बाद वहाज को घर में मुंतकिल कर दिया गया। फिर आराम से शहरयार इंसारी को सब ने बताया। वो सुनकर परेशान हुए और उसकी हालत देखकर मजीद परेशान हुए। डैड, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, मैं आपके सामने हूँ तो जिंदा सलामत, थोड़ा सा फ्रैक्चर हुआ है, वहाज ने कहा। रेहान वहाज को सहारा देकर ऊपर कमरे में ले गया। उन्होंने चाहते हुए भी उसके सारे काम आबी के गले पड़ गए। मुझे अपने काम करते हुए मौत आती है, उसके भी सारे काम करने पड़ेंगे। है अल्लाह, मैं कहाँ जाऊँ? वो सब कमरे में बैठे हुए थे, वो आज के साथ। आबी बस वहाज को घूरे जा रही थी और सोच रही थी, अम्मी, वहाज भाई को तो फुल टाइम नर्स की ज़रूरत है, ये तो फिलहाल पानी भी खुद से नहीं पी सकते। रेहान ने कहा। अरे नर्स क्यों? बीवी के होते हुए भी भला कोई नर्स रखता है? अभी सारा काम करते कि वहाज का। हमीदा ने कहा तो अभी का मूड मजीद खराब हुआ। मरती क्या ना करती, करना तो अभी को ही कोई था। नूर और अभी दोनों किचन में खड़ी हुई थी। नूर वहाज के लिए सूप बना रही थी और अभी इसी इंतजार में थी कि सूप तैयार हो तो वहाज को दे आए। ये लो सूप, अब अपने हाथों से आराम से वहाज को पिलाती जाओ। अरे मैं क्यों पिलाऊं? उसके अपने हाथ जो है, उसने बेजारी से कहा। ये क्या तरीका है? इस तरह की बातों से तो मियाँ बीवी के बीच मोहब्बत बढ़ जाती है। शोहर को बीवी की कदर होती है, एहसास होता है कि बीवी उसके दुख सुख की साथी है। मैं तो कहती हूँ यही मौका है वहाज के दिल में अपने लिए जगह बनाने का। नूर ने समझाया। मुझे नहीं चाहिए उसके दिल में जगह। अभी ने कहा। अभी होश के नाखुन लो, अल्लाह ताला मामू को लंबी उम्र दे, लेकिन तुम खुद सोचो, अगर मामू को कुछ हो गया तो वहाज अगले ही दिन तुम्हें छोड़ देगा। ये शादी के हालात में है, तुम खुद अच्छी तरह जानती हो कितनी मजबूरी में वहाज ने तुमसे निकाह किया। सब तुम्हारे सामने है, अभी वक्त है, उसके दिल में जगह बना लो, वरना बहुत पछताओगी। उसके करीब होने की कोशिश करो, तैयार होकर उसका दिल लगाओ। बच्चा होगा तो हमारी पोजीशन मजबूत हो जाएगी, फिर कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वरना कोई ना कोई लड़की आकर तुम्हारा घर बर्बाद कर देगी। पर महमूद तो अगली सुबह ही वहां से कह रहे थे, क्या नहीं पोता चाहिए जल्दी का? नूर ने कहा। नूर की सारी बातें एक तरफ, उसकी आखिरी बात पर अभी का सारा ध्यान चला गया। पोता मतलब वो हाथ में उस रात इसलिए आया था कि मामू को पोता चाहिए। उफ, कितना कमीना है ये शख्स। क्या इतनी ही औकात है मेरी उसकी नज़र में कि बस मैं दूसरों के मतलब के लिए इस्तेमाल होती हूँ? अभी के अंदर कुछ टूटा। अभी सूप लेकर ऊपर कमरे में गई। वहाज को देखकर उसे नूर की बातें याद आई। सूप पी ले। अभी ने सूप उसके सामने बेड साइड पर रखते हुए कहा, कैसे पीऊँ? रेहान को बुलाओ, मुझे उठाने में मेरी मदद करे। वहाज वाकई में उठ नहीं पा रहा, उसे सहारे की जरूरत थी। रेहान तो घर पर नहीं है, देर से आता है, दोस्तों के साथ होता है। अभी ने कहा। तो क्या मैं उसके वापस आने तक भूखा बैठा रहूँगा? मुझे दवाइयाँ भी लेनी है। वहाज की तबीयत में चिड़चिड़ापन आ गया था एक्सीडेंट की वजह से। उसे मुहताजी नहीं पसंद थी, लेकिन फिलहाल वो मुकम्मल तौर पर अभी के रहमो करम पर आ गया था। मेरी मदद करो उठाने में। पता नहीं किस दिल से उसने अभी से कहा। कैसे मदद करूँ? अभी ने उस तो तवाना शख्स को देखा। वहाज ने अपना बेहद हाथ आगे किया। अभी ने वो खींच और उसे कमर से सहारा देकर तकिया से टेक से उठा बैठाया।
ایسا کرتے ہوئے اس کی سانس پھول گئی۔ توبہ دیکھنے میں تو بہت سمارٹ لگتا ہے، 2 من جتنا تو ہاتھ ہے۔ ابھی نے اس کے وزن کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ اس دوران وہ وہاج کے قریب تھی۔ وہ اس نے نوٹ نہیں کیا، پر وہاج آبی کو خود کے اتنے قریب پا کر عجیب احساس میں گھیر گیا۔ اسے اٹھاتے وقت آبی کے بال جو کہ آدھے کیچڑ میں جکڑے ہوئے تھے اس کی ایک شانے پر بکھر گئے۔ وہاج نے اس کے بالوں کو دیکھا۔ زلفیں جانا کی بھی لمبی ہے داستاں، زلف کی میرے دل پر ہے پرچھائیاں، زلف جیسے کہ امڑی ہوئی ہو گھٹا، زلف جیسے کہ ہو کوئی کالی بلا، زلف الجھے تو دنیا پریشان ہو، زلف سلجھے تو یہ زیست آسان ہو، زلف بکھرے سے رات چھانے لگے، زلف لہرائے تو رات گانے لگے، زلف زنجیر ہے پھر بھی کتنی ہنسی، ریشمی ریشمی امبری امبری۔ وہاج کے دل سے آواز آئی، جس آواز پر وہ دھیان نہیں دینا چاہتا تھا۔ اب پیئیں سوپ۔ اس نے دوسرا تکیہ وہاج کی گود میں رکھ کر وہاں ٹرے میں سوپ رکھ دیا۔ وہ کہہ کر جانے لگی تو وہاج کو غصہ آ گیا۔ کیا یہ جان بوجھ کر ایسا کر رہی ہے؟ مجھے تنگ، یہ جانتی ہے کہ میں اس کا محتاج ہو گیا ہوں، اس لیے نخرے کر رہی ہے۔ کیسے پیوں؟ الٹے ہاتھ سے مجھے پینا نہیں آتا، وہاج نے کہا۔ تو میں کیا کروں؟ ابھی نے سوالیہ انداز میں سر ہلایا۔ ایسا کرو، پپو کو بلاؤ، وہ مجھے پلا دے، اب میں خود نہیں پی سکتا، الٹے ہاتھ سے وہاج نے جان بوجھ کر کہا۔ ہاں، امی کو بلاؤں تاکہ میری گلاس لیں۔ وہ ابھی کو تب چڑھ گئی۔ ابھی وہاج کے سامنے بیٹھ کر چمچ بھر کر اسے سوپ پلانے لگی اور ساتھ ہی ساتھ وہاج کی نظریں اسے مسلسل خود پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہاج نہ چاہتے ہوئے بھی خود کو اسے دیکھنے سے باز نہیں رکھ پا رہا تھا۔ کیا ہے اتنی جلدی جلدی چمچ بھر کر میرے منہ میں ٹھوس رہی ہو؟ ایسا کر دو میرے منہ کے ساتھ تو میں ایک ساتھ کے ساتھ پی لوں۔ یہ بھی صحیح بات ہے۔ ایسا کرو، تم ٹھوس ٹھوس کر جو میرے منہ میں ڈال رہی ہو، ایک ہی بات میرے منہ کے ساتھ پیالہ لگاؤ تاکہ میں سارا پی جاؤں۔ وہاج نے غصے سے کہا۔ ہاں، یہ آئیڈیا اچھا ہے، ابھی نے کہہ کر ڈنڈا اٹھا لیا۔ تمہاری وجہ سے سال میں پہنچا ہوں، ضرور تم نے بددعا دی ہوگی مجھے اس رات والی حرکت کی وجہ سے، اس لیے اگلی صبح میرا یہ حال ہو گیا۔ وہاج نے کہا۔ جانتی تھی میں، اب اس کا الزام بھی آپ مجھے پر ڈال دیں گے۔ پہلے 2 قتل میں کر چکی ہوں بقول آپ کے، اب آپ مجھ سے دور رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نحوست کہیں آپ کو بھی نہ مار ڈالے۔ آپ بھی دہن پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ وہاج کو مزید غصہ آ گیا اس کی حرکت پر۔ ابھی کو مجبور اپنا بستر وہاج کے کمرے میں لگانا پڑا۔ وہ صوفے پر سوتی تھی۔ وہاج کا ہاتھ اب بالکل ٹھیک تھا، بس پاؤں کی بینڈیج نہیں اتری تھی۔ وہ 1 ہفتے بعد اتارنی تھی۔ کھانا اب اپنے ہاتھ سے کھاتا تھا، لیکن وہ اس کے لیے ابھی کے دیدار سے محروم ہو گیا تھا۔ ابھی جب تک اسے کھانا کھلاتی وہ اس کے چہرے میں کھو جاتا، یکٹک اسے دیکھتا رہتا، اس کی زلفوں کو دیکھتا، اس کی آنکھوں کو دیکھتا، اس کے چہرے کے نقوش میں کھو جاتا۔ اس لمحے میں اسے اپنی انا پر اتنا غرور کچھ بھی یاد نہیں رہتا تھا۔ اس کے سامنے ایک حسین لڑکی ہوتی تھی جس کے ساتھ اس کا جائز رشتہ تھا، اسے دیکھنے کا پورا حق رکھتا تھا اور اسی حق سے دیکھا جاتا۔ ابھی اس کی نظروں سے پزل ہوئی۔ جب وہ وہاج کو کھانا کھلاتی تھی تب اسے احساس ہوتا تھا کہ وہاج اپنی نظریں اس پر گاڑے ہوئے ہیں۔ غصے کی بجائے اسے ایک الگ سا احساس ہونے لگا وہاج کی نظروں میں۔ وہاج کو اب انتظار ہوتا کہ کب کھانے کا وقت ہو اور کب ابھی اس کے قریب آئے اور وہ اسے دیکھے۔ وہ اسے دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتا۔ جب اتنی حسین لڑکی سامنے ہو تو پھر مرد ہوتا ہے، اپنی انا اپنی نفرت سب ایک طرف رکھ کر اسے دیکھتا ہے، لڑکی بھی وہ جو جائز ہو۔ ادھر آبی کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ وہ لاشعوری طور پر خود پر دھیان دینے لگی تھی، اپنے بال بناتی، ایسا ہیئر اسٹائل بناتی جو کہ اس کے لمبے بالوں پر خوب جچتا، پھر وہ ہلکا سا میک اپ بھی کرنے لگی، قاتل نگاہوں پر کاجل اور آئی لائنر کی لکیر لگاتی تو وہاج انصاری کے دل کے تار چیر جاتی۔ وہ روز ایک نیا اسٹائلش لباس پہنتی، وہ ایسی تیار ہوتی کہ اس کی تیاری میں سادگی کا عنصر چھپا ہوا ہوتا، زیادہ دور نہیں ہوتی۔ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ سب کیوں کر رہی ہے، وہ زیادہ اوور نہیں ہوتی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب وہاج کے لیے کر رہی ہے۔ آبی اسے اتنا قریب پا کر سوچ میں پڑ جاتی۔ ایک اتنا ہینڈسم شخص جو کہ اس کے شوہر تھا اسے دیکھتا تھا، وہاج کی نظروں میں اس پر نفرت کی بجائے کچھ اور ہی نظر آتا تھا۔ وہ پزل ہو جاتی، وہ چھپ چھپ کر اسے دیکھتی جب وہ سو رہا ہوتا یا موبائل میں مصروف ہوتا یا ٹی وی دیکھ رہا ہوتا۔ پھر اسے یاد آتا کہ یہ شادی کن حالات میں ہوئی تھی، پھر اس کے اندر کچھ ٹوٹ جاتا۔ ایک رات وہ سو رہی تھی، وہاج بھی سویا ہوا تھا، اچانک دھڑم کی آواز ہوئی۔
वहाज की नींद खराब हुई। उसने सामने पर टेबल लैंप रोशन किया, ये देखने के लिए क्या गिरने की आवाज़ थी। उसने देखा आबी सोफे से नीचे गिरी हुई है। आबी वैसे तो बेड से भी कई बार गिर जाती थी, लेकिन आज वहाज के सामने वो शर्मिंदा हुई। शर्मिंदगी के मारे उसकी तरफ देखा भी नहीं और चुपचाप उठकर दोबारा सोफे पर सो गई। और चुपचाप उठकर दोबारा सोफे पर सो गई। हंसना मना है। अगली रात जब आबी सोफे पर सोने लगी तो वहाज ने पुकारा, सुनो, तुम बेड के इस तरफ सो सकती हो। वहाज ने कहा तो आबी हैरान हुई। वो समझ गई कि कल रात गिरने की वजह से वो ऐसा कह रहा है। उसे डर लग रहा था सोते हुए, लेकिन क्या करती, सोफे पर उसे नींद नहीं आ रही थी। पिछले 15 दिन से वो सोफे पर सो रही थी और वहाज की खिदमतें करने के लिए सवेरे जागना पड़ता था। उसकी नींद पूरी नहीं होती थी। नहीं, मैं यहाँ ही ठीक हूँ, आबी ने कहा। तुम फिर से गिर जाओगी और मेरी नींद खराब हो गई, इसलिए कह रहा हूँ ताकि मेरी नींद डिस्टर्ब ना हो। वहाज ने बहाना बनाया, लेकिन पहली बार उसे देखा और आबी का जब वो सोफे से गिरी। वो इसके लिए जागती थी, उसकी खिदमतें करती थी। वहाज को एहसास था। अभी थोड़ी देर सोचती रही, फिर बेड पर आकर लेट गई। लाइट कौन ऑफ करेगा, वहाज ने कहा। वो उठी और बत्ती बजा दी। रात की न जाने कौन सी पहर वहाज की आँख खुल गई। उसने टेबल लैंप रोशन किया। उसकी नज़र आबी पर पड़ी। वो गहरी नींद सो रही थी। वहाज उसे देखता रहा। उसके अंदर से आवाज़ आई, वहाज इंसारी, क्या तुम इस मामूली सी लड़की पर आशिक हो रही हो? संभालो खुद को, ये तुम्हारे लायक नहीं। नहीं नहीं, मैं इस पर आशिक नहीं हूँ, उसने जवाब दिया। फिर वहाज ने टेबल लैंप ऑफ कर दी। एक माह तक वहाज जो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया था। एक माह में वहाज बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। उसके पाँव की बैंडेज भी उतर गई। आज वो ऑफिस जाने को तैयार था। बहुत खुश हुई तुम्हें सेहतियाब देखकर, शहरयार इंसानी ने कहा तो मुस्करा दिया। सब नाश्ता कर रहे थे। मेरी प्यारी बहू ने तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, शहरयारी इंसानी ने आबिश की तरफ देखते हुए कहा। वहाज ने एक नज़र आबी पर डाली, फिर बोला, आपकी प्यारी बहनों को मजबूरन पूरा महीना मेरी वजह से सवेरे जागना पड़ा है। वहाज ने तंज किया। यह तारीफ आबी समझी नहीं। उसकी यही सजा है, ये जो घोड़े गधे बेचकर सोती है ना। रेयान ने कहा, तुम चुप करो एवल डेवल। आबी ने रेयान को आंखें दिखाई। रात हुई तो आबी अपना लिहाफ उठाकर वहाज के कमरे से जाने लगी। कहाँ जा रही हो, वहाज ने पूछा। अपने कमरे में, उसने जवाब दिया। क्यों, वहाज ने पूछा। अब आप ठीक हो गए हैं, अब आपको मेरी ज़रूरत नहीं, वो जताने वाले अंदाज में कहकर चली गई। वो क्या कह गई? वहाज इंसारी कमरा ही वीरान कर गई। वहाज सोने की कोशिश करने लगा, मगर नींद नहीं आ रही थी। आंखों के सामने बस आबी का चेहरा आ रहा था। वो बार बार पहलू बदलता, लेकिन नींद की बस्ती को सो दूर थी। इसी कोशिश में रात का 1 बज गया। बिलाखिर वो उठा। उससे कदम खुद ब खुद आबी के कमरे की जानिब बढ़ने लगे। उधर आबी सोने की कोशिश में हलकान हो गई। कमरे में अंधेरा किए देर से पड़ी थी, मगर ये एहसास के वहाज ने उसे रोका नहीं, उसे सोने नहीं दे रहा था। अंधेरे कमरे में अब उसके आंसू उसका तकिया नम कर रहे थे। मेरी कोई ऐसी बात नहीं, मेरी ज़ात की कोई अहमियत नहीं, मैं सिर्फ ज़रूरत के लिए हूँ। मैं मजबूरी तो हो सकती हूँ, लेकिन मोहब्बत नहीं, वो सोच रही थी। आंखें नींद से बोझल थी, मगर दिमाग सोने को तैयार नहीं था। कौन हूँ मैं, वो लड़की जिसे अपनों ने नहीं रखा, उसे पराए क्या रखेंगे? हर जगह से निकाल दिया गया मुझे, फिर भी सौतेले रिश्तों ने बरम रखा। अम्मी, नूर, जिमल, रेयान, इन्होंने अपनाया, मगर वहाज क्यों ऐसा किया मेरे साथ? क्यों मुझसे निकाह किया जब मेरी ज़ात में कोई दिलचस्पी थी ही नहीं तुम्हें? क्यों मुझे देखते रहते थे जब मैं पसंद ही न थी? क्यों मुझे एहसास दिलाया अपनी नज़रों का? क्यों मेरे दिल को बरखा लाया? और आप कमरा छोड़कर आई तो रोका तक नहीं, एक आवाज़ नहीं दी। मैं तो इस उम्मीद पर थी कि तुम मेरा हाथ थाम लोगे, मुझे जाने नहीं दोगे, मुझे रोक लोगे। मैं क्यों इसे इंसान के लिए रो रही हूँ जिससे मेरी परवाह ही नहीं, जो सुकून से सो रहा है मेरी नींदें हराम करके। आबी ने आंसू साफ किए। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला, कोई अंदर आया और फिर दरवाज़ा लॉक करने की आवाज़ आई। आबी ने टेबल लैंप जलाकर देखा, सामने वहाज था। वो चलता हुआ इसके करीब आकर बैठ गया। आबी भी बैठ गई, जो कंफर्ट में घुसी हुई थी। आप यहाँ, आबी की बात मुकम्मल नहीं हुई। वहाँ उसने अपने हसार में लिया। आबी का दिल किसी बेलगाम घोड़े की मानो दौड़ने लगा। उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। पहले जो आया था तो नफरत से भरा हुआ था उसका लहजा। आबी ने उसे बुरी तरह धिक्कार दिया था इस दिन, मगर आज उसकी आंखों में कुछ और ही था। आप जाएं यहाँ से, आबी ने बेमुश्किल अल्फाज अदा किए। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तुमसे दूर नहीं रह सकता, वहाज ने जज्बात की रूह में बहते हुए कहा।
आबी ने उसकी आंखों में देखा, उसे मोहब्बत दिखाई दी। आई लव यू आबी। वहाज ने अपना हसार उसके गिर्द मजबूत करते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा, आप जाएं। वो फिर बोली, शायद अभी तक नाराज थी। वहाज ने उंगली के इशारों से उसे खामोश रहने को कहा और आबी कब चाहती थी कि वो जाए। वो तो उसकी मुंतज़िर थी, उसकी कुर्बत उसे सुकून दे रही थी कि हम इतने खुशकिस्मत हूँ कि ये शख्स खुद चलकर मेरे पास आया। आबी ने दिल में कहा। उसे यकीन करने में मुश्किल पेश आ रही थी कि वहाज इंसानी उससे इज़हार मोहब्बत कर रहा है। आबी ने मजीद कुछ नहीं कहा। पूरे दिल से अपना आप उसने वहाज को सौंप दिया। सुबह वहाज ऑफिस के लिए उठा। आबी सो रही थी। वहाज ने मुस्कुराते हुए उसे देखा, फिर उसे आराम से अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया और अपनी कमरे में आ गया। आबी की आंख खुली तो देखा वहाज नहीं है। वो जल्दी से उठी और उसके कमरे में गई, जहाँ पर वो तैयार आईने के सामने खड़ा परफ्यूम स्प्रे कर रहा था। मुझे देर हो गई जागने में, आबी ने दिल में खुद को कोसा। वो वहाज के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई और उसे देखने लगी। शायद वो कुछ बोले। वहाज ने एक नज़र उसे देखा और फिर अपनी कलाई में अपनी घड़ी पहनने लगा, मगर बोला कुछ नहीं। चुपचाप अपने कमरे से निकल गया। आबी देखती रह गई। शब भर उस और मेहरबान होने वाला अब इससे बात तो दूर की बात, उसकी तरफ देखना भी गवारा न किया। उसके अंदर कुछ टूट सा गया। उसकी आंख भर आई। वो उम्मीद लगाए बैठी थी कि वह आज उसे दिल की मोहब्बत के दो बोल जरूर बोलेगा, मगर ऐसा कुछ न हुआ। वो पहले की तरह मगरूर और अक्खड़ हो गया था। अभी समझ गई कि वो बस वक्ती तलब और ज़रूरत के तहत उसके पास आया था। अब उसके आंसू रवा थे। वह आज ऑफिस आया तो खोया खोया सा था। किसी काम में दिल नहीं लग रहा था। वो यहाँ होते हुए भी यहाँ नहीं था। नजरों के सामने बार बार आबी का चेहरा आ रहा था। अहमद ने नोट किया तो पूछा, किन ख्यालों में खोया हुआ है? अभी तक लगता है तुम्हारी तबीयत सही नहीं हुई। अहमद ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस सुबह तुम्हारी भाभी से कोई बात किए बगैर ऑफिस चला आया हूँ। अब दिल कुछ अजीब सा हो रहा है। वहाज ने साफ साफ कहा, इसका मतलब है कि जनाब को भाभी से मोहब्बत हो गई है। अहमद ने कहा, मोहब्बत का तो पता नहीं, मैं मोहब्बत के जमीलों में पड़ने वाला इंसान नहीं हूँ, एक प्रैक्टिकल बंदा हूँ। वहाज ने कहा, मगर फिर भी तुम भाभी के बारे में सोच रहे हो, ये मोहब्बत ही है। अहमद ने कहा, तुम ऐसा करो, घर जाकर उनसे अच्छे तरीके से बात करो, उनका ख्याल रखो, उन्हें अपनी मोहब्बत का एहसास कराओ। अहमद किसी माँ की तरह नसीहतें करने लगा। मैं जन मरीद नहीं बनना चाहता और इस तरह से औरत सर पर चढ़ जाती है। मैं किसी की गुलामी नहीं दे सकता। वहाज इंसानी की शख्सियत का एक रोब है। अगर जन मरीद बन गया तो मेरी कोई पर्सनैलिटी नहीं रहेगी। फिर वहाज इंसानी नहीं रहेगा। गुरूर में डूबा हुआ वो आज बोल रहा था, लेकिन बीवी को मोहब्बत देने से इंसान की इज्जत में कमी नहीं हो जाती। अहमद ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बाकी बीवी मेरी है और मेरी ही रहेगी। मैं जन मरीद बनूं या नहीं, वो कहीं नहीं जाएगी। उसके पास कोई रास्ता है ही नहीं मेरे साथ रहने के अलावा। मुझे कोई खौफ नहीं है उसके जाने का। बस बच्चा हो जाए जल्दी तो डैड खुश हो, और बच्चा हो गया तो अभी मजीद मेरी मोहब्बत में डूब जाएगी। वहाज ने कहा, लेकिन बीवी को मोहब्बत देनी पड़ेगी। भले भाभी के पास तेरे साथ रहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उसका ये मतलब नहीं कि उन्हें मोहब्बत दे ही ना। भाभी तुम्हारे हक की हकदार है। अहमद समझ गया कि वहाज के क्या इरादे हैं। वो इसे बचपन से जानता था। वो समझ गया कि वहाज चाहता है कि बीवी उसके खिलाफ बनकर रहे और वो अपने गुरूर में डूब कर मोहब्बत न दे। वो मेरी बीवी है और मैंने उसका दिल फतह कर लिया है। अब मैं मुतमिन हूँ, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। वहाज ने कहा, और अगर उसने तुझे छोड़ दिया तो? अहमद ने पूछा, ऐसा नहीं होगा, उसका कोई और ठिकाना नहीं है। वहाज ने चेयर से टेक लगाते हुए गुरूर से कहा, और अगर ऐसा हो गया तो? अहमद ने उसे डराना चाहा, तो मनहूस बातें क्यों किए जा रहा है? वो मेरी मोहब्बत में डूब चुकी है। मैंने उससे की आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखी है, इसीलिए मुतमिन हो गया हूँ। मुझे उसे खोने का कोई खौफ नहीं है। वहाज ने अपनी उंगलियों में गमाते हुए कहा। अहमद चुप हो गया, लेकिन वहाज सोच में पड़ गया। अभी सारा दिन उसी इंतजार में थी कि वहाज की कॉल आएगी या कोई पैगाम, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये एक दिन उसने वहाज के बगैर कैसे गुजारा ये वही जानती थी। क्या ऐसी होती हैं बीवियां, इतनी जल्दी शोहर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती हैं, इस तरह से पागल हो जाती हैं जिस तरह से मैं पागल हो गई हूँ? क्या निकाह में इतनी ताकत है? एक दिन मेरा नहीं गुजर रहा उसके बगैर। अभी खुद से बातें कर रही थी कि वहाज की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। वो एक झटके से उठी, अपना हुलिया दुरुस्त किया। वहाज अंदर लाउंज में और हंसबे आधा सोफे पर बैठ गया। नूर ने उसे देखा तो उसके लिए चाय बनाई। घर आते ही पहली सदा चाय के लिए लगाता था। आबी कहाँ है? नूर ने चाय दी तो उसने पूछा, वो शायद ऊपर कमरे में। नूर ने कहा, फिर देखा तो वो सीढ़ियाँ उतरती नीचे आ रही थी।
اس نے سلام کیا وہاج کو۔ وہاج نے جواب دیا، پھر بولا، میرے لیے چائے بنانے کی ذمہ داری تمہاری ہے، میں گھر آؤں تو میری چائے پہلے سے تیار ہونی چاہیے۔ نور، کب تم چائے بناؤ گی؟ اصولاً تو تمہیں یہ چائے دینی چاہیے تھی مجھے، وہاج نے کہا تو ابھی کا دل کٹ سا گیا۔ نور کچن میں جا چکی تھی، وہاج آرام سے چائے پینے لگا۔ ابھی وہاج بھی بیٹھ گئی تو اس کے ساتھ۔ چائے پینے کے بعد وہ سونے چلا گیا۔ آفس کی تھکن اتارنے کے لیے تھوڑا سا سو جاتا تھا، واپس آ کر 15-20 منٹ تک سویا رہتا تھا، پھر جاگ جاتا۔ اس وقت نیچے لاؤنج میں رونق ہوتی، زمل کا ٹی وی دیکھنا اونچی آواز میں، حمیدہ بھی اس کے ساتھ ڈرامے دیکھتی دیر تک، جب تک آخری ڈرامہ 11 بجے نہ ختم ہوتا۔ رات 7 سے دونوں ماں بیٹی کے ڈرامے شروع ہوتے تو 11 بجے تک چلتے ہی رہتے۔ ریان وہاں موبائل میں لگا رہتا، نور کچن میں، وہ لاؤنج میں بھی جانگتی ڈرامہ دیکھنے کے لیے۔ شہریار انصاری کے دوست آ جائے اس وقت، وہ ڈرائنگ روم میں دوستوں کے ساتھ خوشخبریاں لگاتے، ان کے دوست دیر تک بیٹھے رہتے تھے، بیچ میں کھانا لگ جاتا اور سب مل جل کر کھاتے، پھر اپنے ڈرامے اور اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے دوبارہ۔ دن کو سب اپنے کمروں میں گھسے ہوتے تھے، 6 بجے باہر نکلتے اور رونق لگ جاتی، چائے خانہ، ٹی وی، باتیں، یہ وقت سب کے لاؤنج میں بیٹھنے کا ہوتا۔ آبی اداسی سے بیٹھی ہوئی تھی سب کے بیچ، بظاہر وہ ٹی وی دیکھ رہی تھی، لیکن اس کا دل، اس کا دھیان وہاج پر تھا۔ کاش میں چائے بنا لیتی، صحیح کہہ رہی ہیں وہ، یہ میرا کام تھا، میری ذمہ داری تھی نور کے لیے۔ آبی خود کو دل ہی دل میں کوسے جا رہی تھی، لیکن اسے ایک عجیب سی خوشی بھی ہو رہی تھی کہ وہاج نے اسے ذمہ داری سونپی ہے، وہ اس کی ہاتھ کی چائے پینا چاہتا ہے، یعنی اسے بیوی کا درجہ دے رہا ہے، صحیح ہے۔ وہ اپنی سوچوں میں مستغرق تھی کہ وہاج سیڑھیاں اترتا دکھائی دیا، وہ رف سے حلیے میں تھا، چہرے پر نیند کے آثار تھے، کھانا تیار ہو گیا تھا، لیکن وہاج کو تو ہر 2 گھنٹے بعد چائے چاہیے ہوتی تھی۔ اس نے آتے جو آبی کو چائے کا اشارہ کیا، آبی خوشی سے کھڑی ہوئی اور کچن میں اس کے لیے چائے بنانے آئی۔ چائے بناتے ہوئے اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے، بڑی خوش لگ رہی ہو، نور نے پوچھا۔ نور نے کہا تو وہ چونکی اور اپنے خیالوں سے باہر آئی۔ وہاج کے لیے چائے بنا رہی ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ آج کے بعد میں ہی انہیں چائے پیش کیا کروں، آبی نے خوشی سے بتایا۔ صرف چائے ہی مت بناؤ، اس کے لیے تھوڑا سا اپنا حلیہ بھی بنا لو، نور نے کہا۔ کیوں، صحیح تو ہے میرا حلیہ یہ، آبی نے کہا۔ یہ حلیہ وہاج کے سٹینڈرڈ کا نہیں ہے بہن، تم نے نازش کو نہیں دیکھا تھا، ساڑی پہنے رہتی تھی وہ، ہر وقت ٹپ ٹاپ، ساڑی سے ان کی شخصیت میں ایک گریز تھا۔ اگر اسی طرح کا حلیہ اپنائے رکھا تو وہاج دوسری لڑکیوں میں دلچسپی لینا شروع کر دے گا۔ وہاج کا سٹینڈرڈ بہت ہائی ہے، تم ہی بتا رہی ہو، نور نے کہا۔ ہائے اللہ، آبی ڈراؤ تو نہیں، کیوں منحوس باتیں کر رہی ہو؟ دوسری لڑکیوں میں دلچسپی کا سن کر ابھی کا دل بھی جیسے دہل گیا تھا۔ وہاج میرا ہے، میں برداشت نہیں کر سکتی وہ کسی اور کے دیکھے یا کوئی اور اسے دیکھے، آبی نے دل میں کہا۔ میں ڈرا نہیں رہی، وارن کر رہی ہوں، نور نے کہا۔ آبی چائے بنا کر وہاج کے پاس آئی، وہاج نے چپ چاپ چائے اس کے ہاتھ سے لے لی، مگر بولا کچھ نہیں۔ ابھی کرے، اگر اور کچھ نہیں تو شکریہ ضرور کہے گا، مگر اس نے کچھ نہیں کہا تو اسے مایوسی ہوئی۔ پھر جب تک وہاج بیٹھا وہاں بیٹھا، آبی سے بالکل لاتعلق ہو کر بیٹھا۔ 11 بجے ٹی وی بند ہو گیا، سب سونے چلے گئے، وہاج بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آبی اداسی ہو گئی، وہ اس کشمکش تھی کہ کہاں سوئے، وہاج نے تو اسے لفٹ ہی نہیں کرائی آج سارا دن، اب اس حال میں وہ اس کے کمرے میں کیسے جاتی؟ کافی دیر سوچنے کے بعد وہ اوپر آئی، دوسرے کمرے میں جا کر لیٹ گئی، وہاج اس کے انتظار میں تھا۔ 11:30 بج رہے تھے، پھر 11:45 بج گئے، وہاج کو غصہ آنے لگا، اس کا فشار خون بند ہو رہا تھا، پھر 12 بج گئے۔ سمجھتی کیا ہے وہ خود کو، کہ میں اس کی منتیں کروں کہ کمرے میں آئے؟ کل میں اس کے پاس گیا تھا، آج اس سے آنا چاہیے تھا، اب روز روز تو میں اس کی منت نہیں کرنے والا۔ ادھر آبی اداس بیٹھی ہوئی تھی، 12 بج گئے مگر انہوں نے بلایا ہی نہیں، شاید اب انہیں میری ضرورت نہیں رہی، لگتا ہے ان کا دل بھر گیا مجھ سے۔ ابھی کو رونا آ رہا تھا، وہ سوچ رہی تھی کہ اس کے موبائل کی میسج ٹون بجی، وہاج کا پیغام تھا۔ ابھی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، پیغام کھولنے سے پہلے، کیا مجھے تمہاری منتیں کرنی پڑے گی کہ تمہیں کمرے میں بلانے کے لیے؟ پیغام پڑھ کر آبی جیسے اچھل پڑی، وہ کمرے میں آئی جہاں وہاج غصے سے چکر کاٹ رہا تھا۔ کیسی بیوی ہو تم، تمہارا شوہر پچھلے 1 گھنٹے سے تمہارے انتظار میں ہے، نازش میرے آنے سے پہلے کمرے میں موجود ہوتی تھی، ہر وقت میرے آگے پیچھے پھرا کرتی تھی، میں نے اس کے ساتھ صرف 1 ماہ گزارا، وہ ایک بہترین بیوی تھی، 1 ماہ میں سمجھو اس نے میری غلامی دی تھی۔ وہاج نے غصے سے مگر دبی آواز میں شہادت کی انگلی سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آبی کا دل تو ڈوب کر رہ گیا، اسے لگا وہ وش کھا کر گر پڑے گی۔ غصہ تو پہلے بھی وہاج اس پر کرتا تھا، لیکن تب آبی کو اس سے محبت نہیں تھی، اس لیے اسے وہاج کے غصے سے فرق نہیں پڑتا تھا، مگر آج اسے فرق پڑ رہا تھا۔
वो उससे मोहब्बत की तवक्का कर रही थी, ना कि गुस्से की। उसे देखती रह गई मगर बोली कुछ नहीं। अब ऐसे क्या देख रही हो मेरी तरफ? आज के बाद मेरे आने से पहले तुम कमरे में मौजूद होनी चाहिए, वहाज ने कहा। तो उसने इस बात में सर हिलाया आराम से। फिर थोड़ी देर तक उसका चेहरे देखने के बाद वहाज का सारा गुस्सा हवा हो गया। वह आगे बढ़ा और हसार में लिया। आई एम सॉरी। वहाज ने उसके कान में सरगोशी की और उसको एहसास हुआ कि कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर गया है। इट्स ओके, आबी ने आराम से कहा। मुझे इंतज़ार पसंद नहीं, इसलिए गुस्सा आ गया था। वहाज ने उसका हाथ थाम कर उसे बैठाया। मुझसे गलती होगी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। आबी एकदम से गुलाम बन गई। मोहब्बत इंसान से गुलामी ही तो करवाती है, लेकिन फिर भी वो खुश थी। वह आज उसके इंतज़ार में था, यानी वो बीवी के तौर पर उसे कबूल कर चुका था। तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, वह आज ने उसके बालों में उंगली फेरते हुए कहा। आबी शर्मा गई। मुझे खूबसूरत आंखों वाली लड़कियां पसंद हैं, वह आज ने कहा। तो आबी को झटका लगा। लड़कियां क्या मतलब? क्या दूसरी लड़कियां भी हैं उनकी ज़िंदगी में? आबी को वसवसा हुआ। क्या सोच रही हो? वहाज ने कहा। कुछ नहीं, वो लड़कियां। आबी के मुंह से इख्तियार निकला। मैंने तुम्हारी आंखों की तारीफ की बजाय इसके कि तुम खुश हो, तुम्हारा सारा ध्यान लड़कियों पर चला गया, वहाज ने मुस्कुरा कर कहा। वैसे बहुत शकी मजाज हो तुम बेबियाँ, वहाज ने कहा। अभी कुछ नहीं बोली। ये जो तुम्हारी जबान कैंची की तरह चलती थी, उसको कफन लग गया है क्या? वहाज ने उसे देखते हुए कहा। वो फिर से उसकी नकोश में खो रहा था। जब उसके इतनी करीब होती तो उसका गुरूर उसकी नासब पस मंजर में चला जाता। वहाज समझ गया था कि अभी उसकी मोहब्बत में संतापा डूब गई है। उसका चुप रहना, उसके बुलाने पर फौरन आना, उसकी खिदमत करना, ये सब बातें वहाज अंसारी के गुरूर में मजीद इजाफा कर रही थी। कल जिस लड़की ने उसे बुरे तरीके से धुतकारा था, उसकी नज़रों को गलीज नज़र कहकर कहा था, क्या कुछ नहीं कहा था अभी ने उसे। आज वही लड़की उसकी गुलाम बन गई थी, उसकी मोहब्बत में पागल होती दिखाई दे रही थी। वह आज उसका पागलपन महसूस कर रहा था। वो अंदर से बहुत खुश था कि उसने अभी का दिल फतह कर लिया है। उसको अना को तस्कीन मिली। एक माह यूं ही गुजर गया। अभी ने महसूस किया वह आज रात को मेहरबान तो दिन को इंजान, यानी रात को तो मेहरबान था लेकिन दिन को अनजान था। अभी चाहती थी कि वो इसके साथ घूमे फिरे, इसे पार्टियों में ले जाए, मगर जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो वो मायूस होगी। आहिस्ता आहिस्ता सारा मामला समझ आने लगा। वह आज की ज़िंदगी में उसकी नज़र में उसकी क्या हैसियत है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ गई थी। एक माह में क्या मेरी ज़ात इतनी हकीर है? मैंने क्यों खुद को इसकी शख्स के सामने पेश किया? कैसे मैं धोखा खा गई? अवश्य इंसारी इतनी बेवकूफ़ और कम अकल तो नहीं थी कभी भी। फिर कैसे उसकी मीठी बातों में आ गई? अपनी ज़ात को खुद ही हकीर बना दिया मैंने। उसके सामने पीछे चली गई। अब मैं मज़ीद खुद को बेमोल नहीं करूँगी उसके सामने। अभी आईना के सामने खड़े खुद को देख रही थी और अपने आप से बातें करती जा रही थी। शाम को वहाज घर आया तो अभी जानबूझकर घर से बाहर शॉपिंग कर चली गई। अभी कहाँ है? नूर ने जब वहाज को चाय पेश की तो उसने पूछा। वो शॉपिंग करने गई है। नूर ने बताया। किसके साथ? वहाज ने चाय का सिप लेते हुए पूछा। अकेली गई है ड्राइवर के साथ, नूर ने बताया। वहाज चुपचाप चाय पीता रहा। आज वो सोया नहीं था। वापस आकर लाउन में ही बैठा रहा। अभी का इंतजार करने लगा। रात 9 बजे वो वापस आई। वहाज को देखे बगैर ही अपने नीचे वाले पुराने कमरे में घुस गई। वहाज को हैरत हुई। वो आप भी जो इसके आने से पहले खड़ी होती थी, उसके आगे पीछे घूमती रहती थी, आज उसे देखे बगैर ही कमरे में चली गई। वो भी अपने पुराने वाले कमरे में, जो कि नीचे वाले पोर्शन में था। वह आज थोड़ा परेशान हुआ। अपना निकला होंठ दांतों से काटते हुए वो किसी गहरी सोच में चला गया। फिर थोड़ी ही देर में उसने इंतज़ार किया कि वो बाहर आएगी, लेकिन ये थोड़ी देर बहुत देर में बदल गई। वो खाने की मेज़ पर भी नहीं आई। अब वहाँ समझ गया कि कोई गड़बड़ है। हस्बे आदात उसे गुस्सा आने लगा। वो खुद उसके पास नहीं जाना चाहता था। वो उसे लिफ्ट नहीं कराना चाहता था। उसके ख्याल में अगर उसने ऐसा किया तो वो सर पर चढ़ जाएगी। वह आज अपने कमरे में ऊपर चला आया। वो अभी का इंतज़ार करने लगा। रात के 11 बज चुके थे लेकिन अभी नहीं आई। अब उसका ज़बत ख़त्म हो गया। उसका फशार फिर से बुलंद होने लगा। अब वो गुस्से से कमरे में चक्कर काट रहा था। अगर उसने तुझे छोड़ दिया तो उसे अहमद की बातें याद आने लगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वो मुझसे मोहब्बत करती है। आबी मुझे कभी नहीं छोड़ सकती। वह आज खुद से बोले जा रहा था। इधर आबी बेड पर चढ़ लेटी हुई छत को घूर रही थी। नहीं जाऊंगी मैं, आज बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी उसके पास। समझता क्या है वो खुद को? इतनी गिरी पेड़ी नहीं हूँ मैं। वो मुझे सिर्फ मतलब के लिए इस्तेमाल करे। जीती जागती इंसान हूँ मैं। मेरे भी कुछ जज्बात हैं। बीवी का सिर्फ जिस्म नहीं होता, उस जिस्म के अंदर उसकी रूह भी बसती होती है। अब रूह की तस्कीन के लिए असीम सच्ची मोहब्बत चाहिए होती है। जिस्म में तो एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, बाकी सिर्फ इंसान की रूह रह जाएगी। जो इंसान मेरी रूह का तस्कीन नहीं दे सकता, मुझे भी उसे अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है। उसे एहसास होना चाहिए कि उसने मुझे कितना हकीर बना दिया है। मैं मज़ीद खुद को बेमोल नहीं कर सकती।
वहाज एक झटके से कमरे से बाहर निकला। नीचे लाउंज में खामोशी कालिम था। वो तेजी से सीढ़ियां उतरता हुआ आबी के कमरे के पास आया। देखा तो दरवाजा लॉक है। उसका गुस्सा मजीद बढ़ गया। आबी, दरवाजा खोलो, वहाज ने आहिस्ता से कहा। वो चाहता था कि घर वालों की आवाज़ न जाए। रात के 12 बज रहे थे। शहरयार, इंसारी, हमीदा और नूर नींद के होश में चले गए थे। जिमल लहाज के नीचे घुसी हुई नेट चला रही थी। मोबाइल में बज़ाहर सो रही थी लेकिन जाग रही थी। रेहान अपने कमरे में लैपटॉप खोले बैठा था। कोई मूवी देख रहा था। अभी नहीं उठी। अभी मैं कह रहा हूँ दरवाज़ा खोलो वरना मुझसे कोई बुरा नहीं होगा, वहाज ने कहा। अभी एक झटके से उठी और दरवाज़ा खोल दिया। आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता, अभी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। ये तुम किस टोन में मुझसे बात कर रही हो आज? वहाज अंदर आया और दरवाज़ा बंद किया। उसके सामने खड़ा होकर उसकी आंखों में देखकर गुस्से से बोला। गुस्से की वजह से उसकी आंखें सुर्ख हो गई थी। उनको मजीद सुर्ख बनाकर उसने अभी को हरासा करना चाहा। मुझे बहुत पहले ही आपके साथ इस दौर में बात करनी चाहिए थी। जो मोहब्बत मैंने आपको दी, आप उसके हकदार नहीं थे। आप इतनी मोहब्बत डिजर्व नहीं करते थे। आबी ने इसी अंदाज में जवाब दिया। वो भी सुर्ख आंखों से वहाज की आंखों में आंखें डालकर देखती जा रही थी। तुम शायद अपनी औकात भूल रही हो। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारी औकात दोबारा से याद दिलाऊं, वहाज ने कहा। आप क्या याद दिलाएंगे मुझे मेरी औकात? मैं खुद अपनी औकात को याद दिलाती हूँ कि आपकी नज़र में मेरी क्या औकात है। मेरी यही औकात है कि आप सिर्फ ज़रूरत के वक़्त ही मुझे याद करते हैं। और इसी बात में धोखा खा गई थी। मगर अब मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने अपना वक़्त और अपनी मोहब्बत गलत जगह गलत इंसान के ऊपर ज़ाया कर दिया, आबी ने कहा। वह आज कुछ देर उसे देखता रहा, फिर उसके हाथ खींचकर उसे अपने कमरे में ले आया। आबी मुसलसल अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो तकरीबन घसीटता हुआ उसे अपने कमरे में लाया और बेड पर पटक दिया।